हेलो दोस्तों। स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि हिस्ट्री की डेटिंग का क्या सिस्टम है। एडी और बीसी, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एडी क्या है और बीसी क्या है। तो बीसी का जैसे आप देख रहे हो, बिफोर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट हुए थे, उनकी डेथ से बर्थ से पहले जो पीरियड काउंट किया जाता है वो बीसी में काउंट किया जाता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, दैट पीरियड इज नोन एज एडी। अब इस हिस्ट्रिकल पीरियड में हम जो है हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं हम तीन पार्ट्स में: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 30 लाख बीसी से। तो 30 लाख बीसी से जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपने सबसे पहले जो आता है प्री हिस्ट्री पीरियड आता है। प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या है कि उसका एविडेंस ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, नो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस इज अवेलेबल। सो उस प्री हिस्ट्री का पीरियड 30 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है। उसको स्टोन एज कहा जाता है। लिथिक मीन्स स्टोन एज कहा जाता है उसको। और इस पीरियड को स्टोन एज में हम पढ़ेंगे तो स्टोन एज भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेलो पैलियोलिथिक एज, दैट मीन्स प्रीवियस previous starting version of stone age, and mesolithic middle part of the stone age, and neolithic new part of the stone age। इनमें हम क्या है कि प्रोसेस देखेंगे कि जो आदि मानव हुए थे, ह्यूमन बींग्स हुए थे, कैसे डेवलप हुए थे। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की बात करें, मीन्स प्रीवियस प्रीवियस स्टोन एज। इन दिस स्टोन एज human start developing, so it is also called ice age. In this they depend on the hunting of animals for their foods. They use natural tools, that means they use stones or kill animals by their hands for feeding himself. After that, Mesolithic age started. They think about that the need of animals. They start grazing the animals like dog, sheep, goat, also dependent on the hunting, but no such weapons or any other things found like a developed human. In this period they graze them only for domestic purpose. Means they started playing, and took these animals for their personal purpose, for personal interest, not for any agriculture use. After that, Neolithic age started. In this period, they started development. In this, they start cropping. They start agriculture of cotton and made poetry. They use animals for their bullock cart, and they use for them for agriculture purpose. That's why they started the proper development in Neolithic age. After that, Neolithic age has been ended. In the after that period, proto historic period started, in which
lots of development and lots of development done by the human for their living beings. There are two important eras that we have to know or memorize for exam purpose. That is Vikram Sammat and Saka Sammat, the Vikram era and Saka era. Main thing is about the age of these periods. This is Vikram Sammat is 58 BC and Saka Sammat is 78 AD. We follow we follow Saka Sammat in our Indian calendar. Mainly, this is mainly asked in the exams, and this is developed in the period of Kusan ruler Kanishka, and mainly you have to learn to these periods on the point of view of exam. Now we have discussed about the prehistoric period 30 lakh BC to 2500 BC. Protohistoric period, in this we will study about the Indus civilization and Vedic culture. These things. First of all, we start a Vedic culture. There are only two important points in this Vedic culture, that how many Veds and which Ved is old and which is important, and how much who is more in length. There are there are four Vedas, that is Rig Veda, Rigved, Yajurved, Samved, Atharved. Rigved is the oldest and longest in number of words. This is the important thing that we have to learn about Vedas. And two more things about Vedic culture, that we study Bodh meetings, Bodh Sangati and Jain Sangati. These are two things we have to remember, that both Sangati has four meetings done in that period, for which we will let us discuss about बोध संगति. इसमें चार मीटिंग्स हुई थी, जिसमें पहली मीटिंग जो बोध की हुई थी 483 BC में हुई थी, जो वेन्यू कहाँ पे था, राजगृह में था, और ये चेयरमैनशिप हुई थी महाकाश कश्यप. और किसके शासन में हुई थी, अजात शत्रु के शासन में हुई थी. मेन चीज़ यही याद है रखनी है आपने चारों संगतियों के बारे में, ये आपके लिखी हुई हैं, और याद करने की भी एक मेमोराइज कौन सी पहले हुई थी कौन सी दूसरी हुई थी. ये ए से अजात, के से काला, ए से अशोक और के से कनिष्क. ये चार चीज़ें, चार मेन चीज़ें यही पूछी जाती हैं, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, और कौन सी ईयर में हुई थी. तो आपको ये देखोगे 100 ईयर्स का गैप है इसमें. 483 BC, 383 BC, 250 BC, एंड दैट लास्ट वन इज इन कश्मीर, एंड 98 AD में हुई थी ये. इसके बाद दो मीटिंग्स जैन की हैं, जैन संगति की हैं. इसकी बोध की एक ट्रिक और देख लीजिए, राज वैशाली पुत्र का कश्मीर में. ये राज से राजगृह में आपकी पहली मीटिंग हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पुत्र से बाद पाटलिपुत्र आ जाता है, और चौथी कश्मीर में हुई थी. मेन चीज़ें यही पूछी जाती है एग्ज़ाम में. डेट्स का आपको बता दिया, 100 ईयर्स का डिफरेंस आप काउंट कर सकते हैं, एंड इसका वेन्यू का, और ये आपका किसके शासनकाल में हुई थी, ये सब ट्रिक्स आप देख सकते हैं.
आप जैन संगति, पहली संगति 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और अपनी बौद्ध की जो थर्ड संगति है वो भी पाटलिपुत्र में हुई थी। इस तरह से जैन की सेकंड जो हुई थी बलावी में हुई थी। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने ये आपकी फर्स्ट करवाई थी। उन्होंने अपना धर्म चेंज किया था, इस वजह से उन्होंने अपनी यहाँ पे ये मीटिंग करवाई थी जैन सभा। अब इसके बाद आप देखेंगे इसमें अपना कुछ टेक्स्ट हैं, बुक्स जो आपने याद रखनी है, पूछ लेते हैं। जितने भी त्रिपिटक हुआ और त्रिपिटक, दीपवंसा, वंशावली और पाली टेक्स्ट में है, ये टेक्स्ट भी पूछ लेते हैं इनका। और सूत पिटक, जितना भी पिटक नाम आ जाए पीछे उसमें वो बुद्ध संगति का है। विनायक पिटक, ये सब आपके बुद्ध संगति के हैं। एंड जैन में आ जाता है आपका मेन जो बुक्स हैं आपकी, एक चीज़ और है जानने के लिए आपके पास, गौतम बुद्ध का अपना बर्थ एंड डेथ याद रखनी पड़ेगी आपको। इसमें उनका बर्थ 563 BC में हुआ था, गौतम बुद्ध जी का लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उनकी डेथ कुशीनगर यूपी 483 ईयर्स BC में हुई थी। ये आपको मेन इनका देखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध धर्म की स्थापना करी थी और इन्होंने पहली स्पीच जो दी थी सारनाथ डियर पार्क में दी थी। इनकी बुक्स पाली में थी और संस्कृत में थी। बुद्ध का मैंने बताया, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, मलिंदा पानो, दिवानशिव, महावनिशा, ये बुक्स सारी पाली बुक्स हैं और गौतम बुद्ध के उनमें लिखी हुई हैं, बुद्ध धर्म का हमें एक्सप्लेनेशन करती हैं। एंड संस्कृत में जो लिखी हुई है बुद्ध चरित्रा, अश्वघोष, वासुमित्रा, ये संस्कृत में लिखी हुई हैं जो बुद्ध धर्म का हमें बताते हैं हिस्ट्री। ऐसे ही जैनिज्म में आपको इनके 24 तीर्थंकर हुए। फर्स्ट जो हुए थे ऋषभदेव हुए थे, एंड जो लास्ट हुए थे 24 में तीर्थंकर, लास्ट महावीर जी हुए थे। इन चीज़ों का याद रखना है आपने। एंड इसमें जो महावीर जी का जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था, 540 BC में हुआ था। दैट मीन्स गौतम बुद्ध के बाद हुआ था इनका जन्म। उनका 563 BC में है। याद रखना, BC पहले, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा और फिर जो छोटा होएगा वो पीछे आएगा। इनका एक तीर्थंकर और पूछ लिया जाता है, पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर हुए थे इनके। एंड सेकंड जो आदिनाथ हुए थे वो, उनको विष्णुनाथ अवतार बताया जाता है, ऋग्वेद में भी उनका नाम है। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। यही सब आपने इसका याद रखना है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म का। ये आपका प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में आपका एक काउंट हो जाता है इसका। इनको आपने मेमोराइज करना वैदिक पीरियड में। इसके बाद हम नेक्स्ट इंडस सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।